Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Vishnu Prakash R Pungli Limited Q3 and 9 months FY25 earnings conference call. As a reminder, all participant lines will be in listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star, then 0 on your touch-tone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Ms. Nupur Jain Kuya from Valorem Advisors. Thank you, and over to you, ma'am. Thank you. Good afternoon, everyone, and a very warm welcome to you all. My name is Nupur Jain Kuya from Valorem Advisors. We represent the investor relations of Vishnu Prakash R Pungli Limited, or VPRPL. On behalf of the company, I would like to thank you all for participating in the company's earnings call for the third quarter and 9 months ended financial year 2025. Before we begin, let me mention a short cautionary statement. Some of the statements made in today's earnings call may be forward-looking in nature. Such forward-looking statements are subject to risk and uncertainties which could cause actual results to differ from those anticipated. Such statements are based on management's beliefs as well as assumptions made by and information currently available to management. Audiences are cautioned not to place any due reliance on these forward-looking statements and making any investment decisions. The purpose of today's earnings call is purely to educate and bring awareness about the company's fundamental business and financial quarter under review. Now, let me introduce you to the management participating with us in today's earnings call and hand it over to them for opening remarks. We have with us Mr. Manohar Lal Pungalia, Managing Director, Mr. Jayant Pungalia, Project Coordinator, and Mr. Sarfaraz Ahmed, Chief Financial Officer of the company. Without any further delay, now I hand over the conference to Mr. Manohar Lal Pungalia. Thank you, and over to you, sir. Thank you, ma'am. सभी उपस्थित माननीय प्रतिभागियों को मेरा सादर अभिवादन। कंपनी के वर्तमान वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही की अवधि में कंपनी द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों की जानकारी देने एवं भविष्य की रूपरेखा पर संक्षिप्त चर्चा करने के लिए इस वर्चुअल कॉल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो लोग कंपनी से अपेक्षाकृत अपरिचित है, उनके हित में मैं सबसे पहले कंपनी के अति संक्षिप्त विवरण के साथ शुरुआत कर रहा हूं। बीपीआरपीएल की स्थापना 1986 में हुई थी। हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्य संपादित करने वाली कंपनी है, जिसके पास भारत में 10 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, मणिपुर और गोवा और एक केंद्र शासित प्रदेश दमन में केंद्र सरकार के विभिन्न उपक्रमों और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, विश्व बैंक परियोजनाओं और निजी निकायों के लिए विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं को ईपीसी मोड पर क्रियान्वित करने का व्यापक अनुभव है। कंपनी को पुंगलिया परिवार के विभिन्न आयु वर्ग के 13 सदस्यों व 110 से ज्यादा अनुभवी इंजीनियरों, प्रबंधकों एवं वित्तीय विशेषज्ञों का सक्रिय योगदान प्राप्त है, जिनकी कर्मशीलता, लगन एवं परिश्रम द्वारा कंपनी लगातार उन्नति की ओर अग्रसर है। हमारे मुख्य व्यवसाय के रूप में ईपीसी मोड पर बुनियादी ढांचे के विकास कार्य है, जिसमें उनके क्रियान्वयन, संचालन और रखरखाव की गतिविधियां सम्मिलित है, जिन्हें प्रमुख तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं द्वारा हमारा मुख्य कार्य क्षेत्र है, जिसका गत वित्तीय वर्ष में कंपनी के राजस्व में लगभग 77% योगदान रहा है। इस वर्ष की तीन तिमाही की अवधि में इस कार्य क्षेत्र का कंपनी के राजस्व में लगभग 75% योगदान रहा है। इन कार्यों में प्रमुखतया वाटर स्टोरेज टैंक, रिजर्वायर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओवरहेड टैंक, पंप हाउस आदि बनाने एवं पाइपलाइन एवं मशीनरी लगाने आदि जैसे कार्य शामिल है।
रेलवे क्षेत्र, जिसका गत वित्तीय वर्ष में कंपनी के राजस्व में लगभग 12% योगदान रहा है, इस वर्ष की तिमाही की अवधि में भी इस कार्य क्षेत्र का कंपनी के राजस्व में लगभग 12% योगदान रहा है। इन कार्यों में प्रमुखतया रेलवे ट्रैक बिछाने, रेलवे स्टेशन और संबंध भवन, प्लेटफॉर्म, पुल आदि के निर्माण कार्य जैसे इसमें शामिल है। सड़क क्षेत्र में, जिसका गत वित्तीय वर्ष में कंपनी के राजस्व में लगभग 7% का योगदान रहा है, इस वर्ष की तिमाही की अवधि में इस कार्य क्षेत्र का कंपनी के राजस्व में लगभग 8% का योगदान रहा है, जिसमें सड़क, राजमार्ग, पुल और फ्लाईओवर का निर्माण विकास शामिल है। सीवरेज क्षेत्र में, जिसमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवर लाइन आदि जैसी गतिविधियां भी शामिल है। नेटवर्क, इरिगेशन एवं संबंधित सिविल कार्यों के द्वारा भी सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने की परियोजना का कार्य भी है। इन कार्यों हेतु हमारे पास निर्माण कार्य संबंधी लगभग 550 से अधिक वाहनों एवं सभी प्रकार के नवीनतम तकनीक वाले निर्माण उपकरणों का बेड़ा भी है। दिसंबर 2024 में समाप्त होने वाली वर्तमान वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी का टर्नओवर 241 करोड़ रुपए रहा है, जो दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली गत वर्ष की तिमाही के टर्नओवर 242 करोड़ रुपए के लगभग बराबर है। इसी प्रकार दिसंबर 2024 में समाप्त होने वाले 9 माह की अवधि में कंपनी का टर्नओवर 832 करोड़ रुपए का रहा है, जो दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाले 9 माह की अवधि के टर्नओवर 816 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 2% अधिक रहा है। सितंबर 2024 में समाप्त हुई तिमाही का टर्नओवर 335 करोड़ रुपए रहा, जबकि तीसरी तिमाही में 241 करोड़ रुपए रहा है। इस कमी का मुख्य कारण जल प्रदाय विभागों से भुगतान में देरी हुई है। जल जीवन मिशन के कार्यक्रम को केंद्र सरकार द्वारा अभी जो बजट आया था उसमें 2028 तक बढ़ाकर केंद्रीय बजट में प्रावधान कर दिया है। इससे आने वाले समय में कंपनी द्वारा किए गए कार्यों का भुगतान होने की संभावना बढ़ गई है, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले समय में कंपनी के टर्नओवर में भी वांछित वृद्धि होने की संभावना है। कंपनी का फोकस वर्तमान में बैकवर्ड इंटीग्रेशन के द्वारा इन हाउस निर्माण संबंधी सामग्रियों का उत्पादन करने पर है। इसमें कंपनी की रॉ मटेरियल की लागत में प्रचुर मात्रा में बचत होती है, जिसमें प्रमुखतया रेडीमिक्स प्लांट, प्रेशर यूनिट, ओर्मिक्स प्लांट, लिस्टेक्चर प्लांट, मटेरियल टेस्टिंग हेतु लेबोरेटरी एवं मशीनरी के रखरखाव हेतु वर्कशॉप भी शामिल है। इस प्रकार की इन हाउस निर्माण क्षमताओं के साथ हम कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना परियोजना लागत को कम करने में सक्षम है। इस प्रकार की बाधाएं हमारे सामने पूर्व में भी आई थी, जिन्हें हमने सफलतापूर्वक पार किया है। मुझे विश्वास है कि कंपनी के 38 वर्षों के विशाल अनुभव, स्वयं की निर्माण संबंधी मशीनरी एवं दक्ष तकनीकी टीम की उपलब्धि के आधार पर हम इन चुनौतियों को अब भी सफलतापूर्वक पार कर लेंगे। दिसंबर 2024 तक हमारी ऑर्डर बुक में 5,125 करोड़ रुपए के कार्य है। इस वित्तीय वर्ष में दिसंबर 2024 की अवधि में कंपनी को 1,333 करोड़ के नए ऑर्डर प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 24 से 36 महीनों में निष्पादित किए जाएंगे। नए कार्यों में वाटर सप्लाई के कार्य लगभग 343 करोड़ रुपए के हैं एवं रेलवे के कार्य लगभग 864 करोड़ रुपए के हैं। आपकी कंपनी विभिन्न क्षेत्रों में नए कार्यों के टेंडरों में भाग ले रही है। सड़क, सीवरेज एवं अन्य सिविल कार्यों के क्षेत्र में लगभग 126 करोड़ रुपए के कार्य के भी कार्यादेश हमको मिले हैं। हमारी कंपनी विभिन्न एजेंसियों द्वारा आवंटित कार्यों को अपने समस्त मानव एवं मशीनरी संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने लंबे अनुभव
एवं संसाधनों के बलबूते हम अपने उद्देश्यों को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे एवं कंपनी के हितधारकों की आशाओं पर खरा उतरेंगे। कंपनी में विश्वास जताए रखने के लिए आप सभी का एक बार पुनः आभार। अब मैं इस वर्ष की तीसरी तिमाही अवधि में कंपनी द्वारा प्राप्त की गई वित्तीय उपलब्धियों पर प्रकाश डालने हेतु हमारे CFO श्री सरफराज अहमद को अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir. Good afternoon, everyone. Starting with the third quarter of financial year 2025, our revenue from operation stood at 241 crores, which decreased by around 0.5% year-on-year basis. The EBITDA was reported at around 28 crores, which decreased by around 19% year-on-year, with the EBITDA margin reported at 11.42%. The main reason, the company incurred substantial upfront expenditure on new projects, awarded on mobilizing resources, procurement of materials, and initial project execution. Since these projects are still in the early stage, the incurred cost impact the current quarter's margin. However, the revenue from these projects are expected to materialize in the upcoming quarters, which will result in significant margin improvement. Net profit for the quarter stood at around 4 crores, which has declined by 78% year-on-year basis. PAT margin for the quarter stood at 1.62%. Main reason is delayed payment from the clients or department resulted in companies to secure external financial support from bank or financial institutions, leading to additional interest cost and affecting the profitability. Now coming to the financial highlights for the 9 months of the financial year 2025. Our revenue from operations reached at 832 crores, marking a year-on-year increase at approximately 2%. EBITDA was around 110 crores, representing a year-on-year growth of around 5%, with EBITDA margin 13.19%. Net profit for the 9 months was approximately 42 crores, reflecting a 23% decline year-on-year basis. The PAT margin stood at 5.09%. Now, I will request Mr. Jayant Punglia to provide the operational highlights for the quarter and the review. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. The company has successfully secured new orders worth rupees 1,333 crores during the current financial year, reflecting strong business growth, and with that, the total order book stands at approximately rupees 5,125 crores as on 31st December 2024. The company was granted registration under the RDSO vendor directory for the fabrication of steel bridge girders, which will enhance the company's backward integration, reduce dependency on external vendors, and improve operational efficiencies. The company has a strong pipeline of new bidding opportunities. Potential orders worth around rupees 4,500 crores are expected to be finalized in the coming months, positioning the company for the continued growth. The company remains committed to business expansion by actively bidding for new projects to sustain a healthy and growing order book, ensuring long-term business stability. With this, we can now open the floor for question and answer session. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Subhash B from Value Investment. Please go ahead. Hello, am I audible? Yes, sir. Okay. So the FY24 revenue was 1,474 crores, and after the Q2 results came out in the investor call, the management guided that you would have about 10 to 15% of growth in FY25. So when I calculate 10 to 15% on FY24, the FY25 estimated revenue was 1,695 or 1,650 crores.
So in the Q2 call, when I asked whether this is achievable, the management was very confident, and you guys said that this is definitely achievable, considering you had to do 500 crore revenue in Q3 and also another 500 in Q4. But in Q3, you have done 200 odd crores now. So I went through your presentation. The presentation clearly gives the reason why the EBITDA margin is down. It's because of the upfront charges that you have incurred for the new projects. But there is no reason given for the revenue decline. So could you explain the reason why the revenue is not recognized? सर मेजर रेवेन्यू डिक्लाइन का reason Sorry? उस लेवल पे नहीं हुए और डिपार्टमेंट से जो पेमेंट डिलेड है उस कारण से रेवेन्यू भी डिक्लाइन हुआ है सर. So how much payments are delayed? So if those payments were realized, what would have been the revenue? Could you give us at least a ballpark number? If you see that लास्ट हमारा जो डेटर्स लेवल था वो 800 करोड़ के आसपास पहुंच चुका था इन ओवरऑल टोटल, और उसके अलावा WIP हमारा 692 था. तो अभी जैसे जैसे रेवेन्यू रियलाइज होगा तो वो मेरी सेल्स बुक होगी उसमें. So you are saying 800 crore and 692 crore is not realized, and if those were realized, then you would have had another 1,450 crores in this quarter. I mean, I didn't understand the numbers. You said 800 and 690 crores, right? But this quarter number is only 200 odd crores. This is the 3 months figure, ना? Okay, I'll leave it at that. Maybe I'll fall back in the queue for to ask this again. But my next question, the second question is, in the last quarter, your receivables, that is trade receivables, was 852 crores, which yes, I think all the analysts questioned you a lot about, and you said that most of those receivables will be collected in October, right? You said that it is already, material part of it is already collected, and that would reflect in the Q3. But now in the Q3, we don't see the balance sheet. So could you give us the net trade receivables amount as on Q3? बिल्कुल, उसमें काफी रियलाइजेशन हुआ था, बट साथ के साथ हमने काम का मोमेंटम फ्लो नहीं किया, तो वापस जो पाइल अप हुआ है उस कारण से, क्योंकि पेमेंट वापस रेगुलराइज नहीं हुए अभी तक डिपार्टमेंट के, तो मोर और लेस वापस से इतना ही डेटस लेवल मेरा बन रहा है अभी. So what is the amount of trade receivables as of today? As of today, trade receivables is around 800 crores. 800 crores again, okay. And could you give us debt levels as on Q3? This is my last question. Our debt level, as on gross debt level, is 608 crores, out of which working capital facilities are 200 crores, term loan is 100 crores, and other facilities are 250 crores. Okay, so it was 668 during Q2, and now it is 600 odd crores. Yes, sir. Okay. Okay, so if you could explain what is the reason for revenue decline, maybe after you answer other analyst questions, that would be helpful. And also my suggestion would be, when you were doing the Q2 investor call, we were already in Q3, right? So you would have had at least a light picture of how your Q3 would look like, but still you guided that Q3 would be very good, right? But the Q3 revenue is not at all good. I mean, we expected 500 crore and it is 200 odd crores. So my suggestion would be to not be too optimistic about the revenue and guide as per the realistic pictures. Thank you. We are on the conservative side, sir. Actually, sir, the thing was, even in the previous quarter, we were receiving kind of part payments from different state governments. So looking to that, we anticipated that payments might regularize in the coming quarters. But then the things didn't work out as we thought. And looking to the previous budget, the central government officially announced the major segment, that is water supply. So now we are very much confident that in coming quarters, the backlog will be recovered. Okay, I hope the trade receivables come down compared to Q2. Thank you. Yeah. Thank you. The next question is from the line of Chandan Mishra from Finvestor. Please go ahead. Good evening, sir. Thanks for the opportunity. My question, sir, regarding tax incurred, sir. Historically, we have incurred 25% tax quarterly.
but this quarter we have incurred approx 49.48% tax. What is the reason, sir? Sorry, sir. Can you repeat your Historic- question, please? Sir, historically, we have incurred 25 odd tax percent quarterly, but this quarter we have given 49.48% tax. What is the reason for this hike in tax? Tax provision, na? Tax percent, yes. Yes, sir. I think it is the same at the same level, sir. सर क्वार्टरली इससे पहले 25-26% के आसपास टैक्स आपने पे किया है, बट इस क्वार्टर में आपने 49.48% का टैक्स पे किया है, जो कि लगभग डबल है, दुगुना है। तो इसका वजह क्या है? ये अचानक से दुगुना टैक्स क्यों लगा है? नहीं, दुगना टैक्स नहीं लगा है सर। प्राइस टैक्स का एडजस्टमेंट हो सकता है, बाकी 25% ही टैक्स लगा हमारा। बैलेंस शीट पे तो सर ये डबल शो हो रहा है। नहीं सर, मैं जो देख पा रहा हूँ अभी इसमें तो मेरा 25% के आसपास ही है। ओके, हाँ, ठीक है, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Sahil Patani from Stalkers Capital. Please go ahead. Hi. My question is similar to one of the previous participants. We had given a guidance of 10-15%. Sorry to interrupt, Mr. Sahil. I would request you to please use your handset. Sorry for that. Yeah, my question is very similar to one of the participants, that we had given a guidance of 10-15% year-on-year. So are we now going to revise the guidance, or what is the management's outlook on that? सर इट डिपेंड्स ऑन द पेमेंट फ्रॉम द डिपार्टमेंट। अगर हम कंजर्वेटिव साइड चलें तो हम यही करेंगे कि जिसमें हमारा लेवल्स पहले जैसे रहेंगे, बट अगर बढ़ने की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट की जो पेमेंट रिलीज होंगे, गवर्नमेंट जितना रिलीज करेगी उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा लेवल और उससे ज्यादा जाएगा। बट एज ऑफ नाउ ऑन अ कंजर्वेटिव साइड हम यही कहेंगे, हम इक्वल लेवल पे मेंटेन करने की ट्राई कर रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि जो हमारा लास्ट ईयर था तो हमारा सिमिलर रहेगा ये, विदाउट एनी फर्दर, विदाउट एनी। अगर पेमेंट पोजीशन नहीं सुधरती है तो सर हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेम रहेगा, और पेमेंट पोजीशन डिपार्टमेंट की तरफ से सुधरता है तो वी कैन गो फर्दर। ओके, ये तो भी आपके क्वेश्चन है आपके पास तो अपकमिंग। Sorry to interrupt, Mr. Sahil. Your line is not very clear. ओके, No, sir. I can hear background noise. ओके, Mr. Sahil? Due to no response from the current participant, we will move on to the next participant. The next question is from the line of Tej Patel from Niveshaay. Please go ahead. थैंक यू सर चांस देने के लिए। सर मेरा थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन ही है। मतलब क्या आपको क्या कॉन्फिडेंस दे रहा है कि जो रिसीवेबल इशू अभी 800 करोड़ के और मतलब पेमेंट कैसे ठीक हो जाएगा? बिकॉज लास्ट क्वार्टर भी आप बोल रहे थे कि पेमेंट का इशू है जो प्रॉब्ली वो ठीक हो जाएगा, और अभी भी जैसे गवर्नमेंट ने 70,000 से ऑलमोस्ट 22,000 पे रिवाइज किया बजट, तो और ऑर्डर्स आने की विजिबिलिटी नहीं है एटलीस्ट ये क्वार्टर। भले नेक्स्ट साल के लिए स्कीम एक्सटेंड की है, बट आपको ये क्या कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हमारा रिसीवेबल सिचुएशन इंप्रूव होगा, नंबर 1, और गवर्नमेंट पेमेंट देने लगेगी? और दूसरा क्वेश्चन, अभी हमारे बुक्स पे कैश कितना है, और लेट्स से नेक्स्ट क्वार्टर में अपने को 200-230 करोड़ का एग्जीक्यूशन करना है, तो और कितना लोन लेना पड़ेगा अपने को? सर फर्स्ट क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ। जो आपने कॉन्फिडेंस लेवल की बात करी है सर, जैसे कि सर जो ऑफिशियली अनाउंस हो गया है, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सर टाइमली रेवेन्यूज नहीं डिलीवर हो पा रहे थे टू दी डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स, उसकी वजह से हमारे को फंडिंग का काफी इश्यूज हुआ था। तो अभी सिंस इट हैज बीन लाइक ऑफिशियली डिक्लेयर्ड, तो वो चीजें वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ये चीज अभी हमारे को रेडी हो जाएगी इन कमिंग टाइम। एंड सर बट वो जो बजट वो तो नेक्स्ट ईयर का हुआ है ना डिक्लेयर 60,000, बट ये साल तो ऑलमोस्ट कम ही कर दिया, 22,000 कर दिया है। तो ये साल का जो भी स्कीम है सर, दैट वाज ओरिजिनली लाइक उसका जो टाइम पीरियड था वो 2024 तक था, जैसे अभी 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया। हाँ, वो अभी से इफेक्टिव है।
ठीक है। मैं मेरा प्रश्न था वो तो मतलब वो तो नेक्स्ट ईयर के लिए बजट एलोकेट किया ना, पर ये साल जो आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स का पेमेंट बाकी है वो उस पर कैसे श्योरिटी आ रही है कि 800 आपका कब तक निकलेगा? करंट प्रोजेक्ट जो है सर, उस प्रोजेक्ट पे भी लागू होता है। उनका वो बजट जो करंट प्रोजेक्ट है सर, उसका बजट होल्ड अप था, वो इस प्रोजेक्ट में भी कंसिडर किया गया। लॉजिस्टिक जो नेक्स्ट ईयर से प्रोजेक्ट आएगा। ठीक है। और सर अभी नेक्स्ट क्वार्टर के एग्जीक्यूशन के लिए और कितना लोन लेना पड़ेगा, और मतलब अभी की कैसी सिचुएशन के हिसाब से? सर सफिशिएंट हमारे पास वर्किंग कैपिटल है, और जो हमने लोन लिए हैं वो सफिशिएंट है टू फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you. The next question is from the line of Harsh from Elegant Family Office. Please go ahead. हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल डिसबर्समेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रहा है, तो ये आपको पर्टिकुलरली राजस्थान स्टेट में प्रॉब्लम आ रही है, यूपी में आ रही है, या अक्रॉस द स्टेट्स ये प्रॉब्लम आ रही है? सर ये बेसिकली ओवरऑल कंप्लीट, जैसे जो जल जीवन मिशन है सर, ये सेंटर एंड स्टेट का पार्टनरशिप के अंदर स्कीम चलता है। तो नॉट जस्ट राजस्थान, सारे ही स्टेट्स के अंदर ये प्रॉब्लम था। एमपी, यूपी, उत्तराखंड, सारे स्टेट्स। तो सर इसमें मतलब जो जल जीवन मिशन में जैसे राजस्थान और सेंटर का 50-50 परसेंटेज होता है, तो इसमें फंडिंग क्या सेंट्रल की तरफ से ड्राइड अप है, या फिर ये स्टेट लेवल पे भी फंडिंग ड्राइड अप है? सर इसमें ऐसा होता है, जैसे ही सेंटर 50% देता है एंड देन कंबाइनिंग विद द स्टेट, तभी हमारे को पेमेंट डिस्पर्स होता है। तो अगर सेंटर अपना शेयर नहीं देता है तब तक स्टेट भी शेयर नहीं देता है सर। तो मतलब अभी प्रॉब्लम मेजरली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चल रही है, जो आपको लगता है कि अगले 3-4 महीने में नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए? बिल्कुल, एग्जैक्टली सर। ठीक है, थैंक यू सर, यही क्वेश्चन था। ऑल द बेस्ट। Thank you. The next question is from the line of Dhananjay Mishra from Sunidhi Securities. Please go ahead. हेलो सर, तो आपने बोला कि ये जो पैसे नहीं आ रहे हैं, देन दैट इज व्हाई द रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ। तो आप इंटेंशनली स्लो डाउन कर रहे हैं प्रोजेक्ट बिकॉज आपके पुराने प्रोजेक्ट के पैसे नहीं आ रहे हैं, और क्या है मतलब एजुकेशन में डिले जो हो रहा है, दैट इज उसका क्या रीजन है? फंड नहीं आने की वजह से एग्जीक्यूशन स्लो तो हुआ ही है सर। है ना? ओके, उस लेवल पे नहीं बढ़ा बस, ठीक है, लेकिन काम कंटिन्यू किए उस मोमेंटम के साथ में। ओके, Q4 तो नॉर्मली आपका 3 साल से देखते हैं, Q4 हमेशा हैवी रहता है। अगर आप FY23 भी देखें, FY24 देखें, तो ये साल भी Q4 उसी प्रोपोर्शन में हैवी रहेगा। अच्छा, ओके। तो ये आपने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट को देगा फंड, एंड देन स्टेट गवर्नमेंट विल अपना कंट्रीब्यूशन करके आपको बिल सर्टिफाई करके आपका पेमेंट करेगा, राइट? तो मतलब पेमेंट अथॉरिटी तो स्टेट गवर्नमेंट ही रहेगा फाइनली आपके लिए ना, एक ही अथॉरिटी रहेगा, राइट? ओके। और ये रेलवे में अभी अपना 1500 करोड़ की ऑर्डर बुक है, तो और अभी हमारा टॉप लाइन करीब 100 करोड़ के आसपास है अगर एनुअल देखें तो इसमें अभी क्या इसका एजुकेशन पीरियड रहेगा, एंड देन 1500 करोड़ के प्रोजेक्ट हम कितने सालों में कंप्लीट करें? सर ये अराउंड 24 से 36 मंथ का इसमें टाइम पीरियड रहता है। हाँ, तो रेलवे का भी सेम ही है कि थोड़ा लंबा रहेगा? क्योंकि 1500 करोड़ की ऑर्डर बुक आप 3 साल में कर लोगे। अराउंड 20 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और मार्जिन का क्या रहता है, मतलब डिफरेंस है, मतलब इसमें रेलवे में मार्जिन थोड़ा कम रहता है वाटर से, और कितना रहता है कंपेयर टू वाटर? नहीं रहता है सर, मार्जिन में ज्यादा डिफरेंस नहीं। अच्छा, ठीक है। लास्टली अपना ये सारे प्रोजेक्ट जेजेएम के अंदर ही आते हैं वाटर वाले, कि कुछ उसमें जेजेएम के बाहर भी आते हैं? मतलब इट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन जल जीवन मिशन का जो बजट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसी के एक्सपेंस पे अपना प्रोजेक्ट डिपेंड करेगा कि हमारे बाहर के भी प्रोजेक्ट हैं वाटर में? हमारे इसके अलावा भी प्रोजेक्ट है सर, जैसे उत्तराखंड है तो दूसरा प्रोजेक्ट है, किसी और में भी दूसरे प्रोजेक्ट है। जैसे उत्तराखंड जो है सर, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का है। आसाम के अंदर हमारे अमृत के सर प्रोजेक्ट है, एंड ऑल इंडिया के प्रोजेक्ट है। तो सर डिफरेंट स्कीम है जल जीवन मिशन के अलावा। ये 3400 करोड़ में हमारा जेजेएम के कितने
हैं और आउटसाइड कितने हैं जो वर्ल्ड वाइड फंडेड एडीबी फंडेड है? सर अराउंड 2000 करोड़ के जल जीवन मिशन के हैं एंड रिमेनिंग अदर स्कीम्स। तो वहाँ पे रिमेनिंग जो है 1400 करोड़ वहाँ पे पेमेंट इशू नहीं है कि वहाँ पे है? वहाँ नहीं है सर, वहाँ इशू नहीं है सर। ओके, ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग वर्क। Thank you. The next question is from the line of Vidhi from IndusInd Bank. Please go ahead. गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सर आपने बोला अराउंड 800 करोड़ का डेटर्स आउटस्टैंडिंग है और बेसिस लास्ट क्वार्टर जो आउटस्टैंडिंग था ये क्वार्टर में कुछ रिकवरी हुआ है। तो सर आप एक डेटर एजिंग का पोजीशन दे सकते हो कि मोर देन 180 डेज या मोर देन 365 डेज कितना डेटर्स है, उसके बेसिस पे हमको एक आइडिया आएगा कि रिकवरी कितना हुआ है प्रीवियस क्वार्टर में। बिल्कुल, मैं आपको शेयर करवा दूंगा आईआर के थ्रू हमारे में। ओके, बट सर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिकवरी अगर हम पूछे तो क्या रिकवरी होगा, कितना परसेंट रिकवर हुआ है, तो उसके बेसिस पे हम अंदाजा लगा सकते हैं कितना परसेंट और डेटर्स ऐड हुआ है। हाँ मैम, करीब 50% से 60% के बीच में रिकवरी हुआ है। ओके सर। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रेंड देखती हूँ तो यूजुअली मार्च क्वार्टर में आपका सेल अबाउट 2 to 2.5 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर होता है। राइट। तो यूजुअली गवर्नमेंट क्या फंड्स लास्ट क्वार्टर में रिलीज करती है कि क्या ट्रेंड है और आपका क्या एक्सपेक्टेशन है लास्ट क्वार्टर के लिए? ये इंफ्रा इंडस्ट्री का ट्रेंड होता है मैम कि जब भी बजट एलोकेशन होता है तो वो मार्च के बाद में बजट लैप्स रहते हैं, तो डिपार्टमेंट जो लास्ट क्वार्टर में ही रिलीज करता है काफी चीजें, तो उस वजह से हमेशा फोर्थ क्वार्टर हायर साइड रहता है। ओके, तो सर अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ हुआ है आफ्टर द लास्ट क्वार्टर, तो कुछ अच्छा बजट के बाद ही आप बोल रहे हो होता है, तो अभी जो भी आपको रिजल्ट दिखेगा वो नेक्स्ट 2 मंथ्स में दिखना चाहिए। यस। Okay. Thank you, sir. Thank you. The next question is from the line of Subhash B from Value Investments. Please go ahead. Sir, you said that due to the new work that you completed, there are, the trade receivables again increased, right? So how much of that amount is increased in this particular quarter? जितना एग्जीक्यूशन हुआ है और उसके अकॉर्डिंग जो पिछला रियलाइज हुआ है नया वापस ऐड हुआ है सर। Can you give me the quantified number? एग्जैक्ट नंबर तो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, बट मैं अभी एक टेंटेटिव आइडिया दे सकता हूँ कि पिछला जितना रिकवर भी हुआ है साथ में साथ नया भी बढ़ा है सर। Okay, and also how do you recognize the revenue? So do you recognize the revenue only after you actually receive the payment, or as soon as you complete the phase of the project, do you recognize the revenue? Even though the payment is not received, would you recognize it? Yes sir. तो स्टेज कंप्लीशन के ऊपर जब भी वर्क सर्टिफाइड होता है तो मेरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है। So as soon as the work is certified, the revenue is recognized. Okay, so for this quarter you made 240 crores revenue, right? So out of 240 crores, how much is received actually, and how much is receivable? How much is receivable? Yeah. Around 60 to 70% is receivable, sir. 60 to 70% of. Mr. Subhash, does that answer your question? No, actually, so that comes up to 144 crores, right? Out of 240, you're saying 144 is receivable. But you did say that out of 852 crores of receivables from last quarter, you said material amount of that was actually received by you. Yes. Right? But I didn't get that number as well. But if you see the 853 bifurcation, there is undue debtors also. Okay. Okay. Thanks. Thank you. The next question is from the line of Prateek Bhandari from Art Ventures. Please go ahead. Mr. Prateek, I would request you to unmute your line and speak, please. Can you hear me now? Yes, sir. सर आपने बताया कि डेटर्स 852 करोड़ के थे सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY25 तक। यस सर। और अभी Q3 के बाद क्या डेटर्स का अमाउंट है?
सर करीब सेम लेवल है, 800 करोड़ के आसपास है। 800 करोड़ के आसपास है। यस सर। मतलब 50 करोड़ से कम हुए डेटर्स। हाँ, कुछ मार्जिनल कम हुए हैं सर। और अभी आपने प्रीवियस पार्टिसिपेंट को बताया कि इस साल का जो भी क्वार्टरली सेल्स किया आपने Q3 का, उसमें से 60 to 70% पैसा अभी भी आना बाकी है। हाँ सर। तो सर ये जो टोटल डेटर्स आपके जो रिकवरी के लिए ड्यू हैं, ये आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इसमें से कितना रिकवरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं Q4 में हो जाने का? टोट्स में जैसे मैंने अभी पहले ही बताया था, उसमें बाइफर्केशन करेंगे तो अनड्यू डेटर्स भी रहता है एज पर एलिजिबिलिटी। तो अनड्यू डेटर्स तो जब काम कंप्लीट होगा तभी आता है। बट ड्यू डेटर्स की अगर बात करूं तो वो हमें उम्मीद है कि इस क्वार्टर एंड तक आना चाहिए, क्योंकि अब बजट वगैरह एलोकेशन चल रहा है और जैसे डिपार्टमेंट हमें रिलीज करना स्टार्ट करेगा तो पहले डेटर्स जो पेंडिंग अमाउंट है पहले वही रिलीज करता है। तो सर वो 800 करोड़ में से अनड्यू और ड्यू डेटर्स का अमाउंट बताएंगे आप? करीब 225 करोड़ का सर अनड्यू है और ड्यू 600 के आसपास का है। तो आप कह रहे हैं कि जो ड्यू डेटर्स है 600-625 करोड़ के, वो पूरी रिकवरी आपको Q4 तक हो जाएगी? सर डिपेंड करता है बजट एलोकेशन पे, मैं फिर बात करूंगा आपको, क्योंकि ये चीज गवर्नमेंट के हाथ में है। सर पर इससे आगे के लिए मतलब आपको विजिबिलिटी नहीं मिलेगी ना, क्योंकि अगर ड्यू डेटर्स भी रिसीव नहीं हो रहे हैं आपके तो आपका Q4 फिर से इम्पैक्ट होगा। नहीं, विजिबिलिटी है ना सर, क्योंकि अब बजट एलोकेट हो गए हैं और नेक्स्ट बजट में भी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेशन दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए भी। तो ऑब्वियसली वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के अभी तो फोकस भी नहीं होता है तो फिर से हमें जो है लोन लेना पड़ेगा, फिर से हम फाइनेंस कॉस्ट इनकर करेंगे। हम इस क्वार्टर में अभी हमारी जो प्लानिंग में है वो लोन वाला तो नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल हो गई है लोन लेकर के। पर सर उससे फाइनेंस कॉस्ट का तो बर्डन पड़ रहा है ना, तो आपकी बॉटम लाइन तो इम्पैक्ट होगी ना सर। ऑब्वियसली सर अभी फाइनेंस कॉस्ट लग रही है, लेकिन जैसे ही मेरा ये टेम्परेरी फेज है, जैसे ही मेरा जब पेमेंट आने लगेगा तो ऑटोमेटिकली वापस मेरा फाइनेंस कॉस्ट फाइनेंस बर्डन कम होगा। हो जाएगा सर। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक आपको डायरेक्शनली क्या दिख रहा है? तो हमको लग रहा है कि ये हो जाना चाहिए। कब तक सर? सर अब जैसे अभी बजट वाला तो अभी हुआ है, तो ये मेरे हिसाब से 15 से 20 फरवरी के बाद में संभावना है कि जल्दी हो जाएगा। कमिंग टाइम पीरियड में होगा नॉर्मल। ओके सर। और आप FY26 के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं सर, रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन्स पे? सर ग्रोथ अगर सब कुछ सही रहता है तो इसको ग्रोथ को बढ़ा के जाएंगे सर। सर नंबर्स में बता सकते हैं सर? नंबर्स अभी नहीं बता सकते, बट आप अच्छा रहेगा सर हमारा लास्ट 5 ईयर्स का हिस्टोरिक नंबर देख लो, उसके अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगाएंगे, क्योंकि ये टाइम ये जो फेज है सर ये तो हर 5 साल में देखते हैं, इस बार थोड़ा लंबा चला है। बाकी हमारी कंपनी में हमने देखा है कि हर 5 साल में एक ये फेज आता है इलेक्शन के टाइम में, और इसके साथ साथ में ये जेजेएम वाला थोड़ा लंबा हो गया, तो ये थोड़ा सा टाइम आपकी ज्यादा बढ़ गया। बाकी नॉर्मली 6-7 महीने में फेज ये खत्म हो जाता था। तो सर Q4 के लिए फिर ये मानना ठीक रहेगा कि मार्जिन्स इम्पैक्टेड ही रहेंगे एज कम्पेयर टू Q2 एंड Q1 में जो हमने डिलीवर की? नहीं सर, इम्पैक्टेड वाला नहीं कहूंगा मैं, कहीं ना कहीं मिटिगेट होंगे और नॉर्मलाइज होंगे मार्जिन भी। Q4 में पूछ रहा हूँ सर मैं। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Rajesh Bhandari from Nakora Engineers. Please go ahead. नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर ये वैसे मैं भी जोधपुर का ही हूँ सर। जी जी मालूम है सर। हाँ सर ये रिजल्ट जो इस बार आए सर बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है मालिक। बिल्कुल सर है। उसमें कारण जैसे है, अभी अपने पास टोटल ऑर्डर बुक कितनी है सर? 5,125 करोड़ का सर। 5,125 करोड़। अच्छा, अपना जो इसमें टर्नओवर आपने दिखाया है इसका करीब करीब आपने 240 करोड़ दिखाया है सर, जो लास्ट ईयर के बराबर है, लेकिन लास्ट क्वार्टर से काफी कम है जी। बट इसमें सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है सर कंपेरेटिवली।
सर ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना सर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस और चेंजेस इन इन्वेंट्री कंसिडर करेंगे ना सर, हाँ तो सर। रेशियो सेम है सर। अभी ओवरहेड में इंक्रीज होने की वजह से मार्जिन डिप हुआ है सर, जैसे इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई है, अदर ओवरहेड थोड़े बढ़ गए हैं। हाँ, फाइनेंस कॉस्ट तो बढ़ी है सर। फाइनेंस कॉस्ट करीब करीब 3-4 करोड़ के आसपास बढ़ी है जी। बट अपना 31-32 करोड़ से सीधा सीधा 7-8 करोड़ प्रॉफिट हो गया सर। बहुत ही कम, बहुत ही मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग कि बहुत डिसअपॉइंटिंग हो गया सर। हमको तो इतनी उम्मीद थी विष्णु प्रकाश से VPRPL से। तो अभी तो पे खरा उतरेंगे, इसमें हम एक दो और बताना चाहते हैं कि हमारे 1-2 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए थे, जो हाँ, सर। वर्क की कॉस्ट थी, हमने उस कॉस्ट तक ही हमने उसका लिया था। तो कुछ हमारे हाँ, जो पेमेंट्स है वो अभी तक पास ऑर्डर नहीं लगे, तो हमने उसको अलाउ नहीं कर पाए थे इसमें। तो हमको उम्मीद है कि हम आप आगे अच्छा रिजल्ट देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और आप, अगर आपका विश्वास है तो हम उस विश्वास पे खरा उतरेंगे। अच्छा सर, एक चीज है कि जैसे कुछ मतलब अपने पास रियलाइज नहीं हुआ अपना पेमेंट, तो अगर पेमेंट अभी इस बार रियलाइज होगा मार्च के पहले और मार्च के पहले वाले क्वार्टर में, तो क्या रिजल्ट्स और इवन जो मार्च इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह कम होगी सर? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगी सर। बिकॉज बहुत सारे पेमेंट जो रियलाइज नहीं किए। अच्छा, पेमेंट रियलाइज नहीं किया लेकिन आपने टर्नओवर में लिया है उसे? सर जो सर्टिफाई हो गए हैं वो हमने बिल कर दिए। अच्छा, भले पेमेंट मिला या नहीं मिला? यस सर, जो सर्टिफाइड हो गए ना, वर्क सर्टिफाइड हो गए, सबमिट कर दिए बिल, वो सर्टिफाइड होती वो राइट टू इनवॉइस हो जाता है सर। तो नहीं, ये क्या टर्न की कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट, मैं तो खुद मैक्नली भारत में था सर, ये पेमेंट की प्रॉब्लम तो आती है और खास करके स्टेट गवर्नमेंट में तो काफी ये आती है प्रॉब्लम। अच्छा सर, अभी अगर 2 या 3 साल के हिसाब से देखें, अच्छा बजट का कोई इम्पैक्ट पड़ा सर अपने ऊपर, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर हमारे अच्छा पॉजिटिव है, ये जल जीवन मिशन का टाइम पीरियड 2023 तक कर दिया, ये हमारे लिए अच्छा अचीवमेंट रहा है। तभी हमको उम्मीद है कि हमारा ये जो पेमेंट है वो फास्ट हो जाएगा। जी, वो तो उन्होंने एक्सटेंड किया है। और जल जीवन मिशन में अभी और भी स्कोप है सर? हाँ, अभी भी है ना सर, अभी 3 साल बढ़ाया है ना इसको। और सर और हाँ। अपॉर्चुनिटीज भी आएगी जल जीवन मिशन में। अच्छा जी, मैंने सुना था वो कि कैनाल वगैरह को ये कर उसकी बजाय वो पाइप वगैरह से ले रहे हैं, ऐसा कुछ सुना था। वो अलग है सर स्कीम, वो भी अलग है। अच्छा, हमारे भी अलग है स्कीम भी। Sorry to interrupt, Mr. Rajesh. I would request you to please rejoin the queue for your follow-up question. Thank you. The next question is from the line of Lokesh from Smiths Limited. Please go ahead. Hello, am I audible? Yes, sir. Yeah, sir, my question is more towards the revenue front for Q4 FY25. तो अगर हम देखते हैं तो हमें लास्ट ईयर का रेवेन्यू अचीव करने के लिए भी 650 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने की आवश्यकता है। नाउ जो रिसीवेबल्स है हमारा 850 करोड़ है। तो अगर कंसिडरिंग लोन भी हम थोड़ा बहुत लेते हैं एग्जीक्यूशन करने के लिए, फिर भी हमें 500-550 करोड़ रिसीवेबल्स जनरेट करने की जरूरत है। तो डू यू थिंक कि हमें Q4 में 500-550 करोड़ का रिसीवेबल्स छूटेगा फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट? सर प्लीज रिपीट करेंगे क्वेश्चन, बीच में डिस्टर्बेंस था। मैं पूछ रहा था कि Q4 में हमें अगर लास्ट ईयर का रेवेन्यू भी अचीव करना है तो हमें मोटा मोटी Q4 में 650 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा टू फॉर दिस फ्लैट रेवेन्यू ग्रोथ इन FY25। अगर हमें वो जनरेट करने के लिए भी हमें अगर रिसीवेबल हमारा 850 करोड़ है और जो सर्टिफाइड बिल है हमारे उसमें से भी अगर हमारा 500-550 करोड़ का आता है तो और थोड़ा बहुत लोन लेते हैं तभी हमारा वो रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास उसका कैश होगा तो एग्जीक्यूशन करने के लिए। तो डू यू थिंक कि रिसीवेबल्स हमारे 500-550 करोड़ के आएंगे ड्यूरिंग Q4? सर बजट आगे तो ऑब्वियसली आएंगे, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो चल ही रहा है, अभी हमने एग्जीक्यूशन को बंद नहीं किया है, तो कंटिन्यूस प्रोसेस है वो तो है ही।
और साथ ही साथ अगर पेमेंट आना स्टार्ट होता है तो हमारे रिसीवेबल्स प्लस जो नए बिल होंगे और ऑब्वियसली वो हम सोच रहे हैं कि उतना अचीव हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगर 500-550 करोड़ का हमारे अगर रिसीवेबल्स नहीं आते तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा टू अचीव लास्ट ईयर रेवेन्यू। Sorry to interrupt, Mr. Lokesh. Your line is not very clear. Can you repeat your question again? Am I audible now? Yes, sir, but there's a lot of background noise from your end. Now, is it clear? Yes, sir. Please continue with your question. हाँ, तो मैं वही पूछ रहा था कि सर 500-550 करोड़ का हमारे पास रिसीवेबल्स, मतलब आप जब बात कर रहे हो टू द अथॉरिटी, तो उतना हमारे पास विजिबिलिटी है कि 500-550 करोड़ का हमारे पास रिसीवेबल्स क्लियर हो जाएंगे इन Q4। अगर वो नहीं होते तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा Q4 में वो अचीव करने के लिए। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पिछले रिसीवेबल्स रियलाइज हो जाएंगे और गवर्नमेंट से जब पैसा आएगा तो उम्मीद है कि हम अचीव भी कर लेंगे उतना लेवल। ओके, एंड फॉर FY26 हमारा अभी भी 15 से जो हम 10 से 15% हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो अगर फ्लैट रेवेन्यू आता तो उससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उतना ग्रोथ आ जाएगा। बिल्कुल सर, FY26 के लिए तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं क्योंकि ये साल तो हमारे लिए स्पेसिफिक रहा, मल्टीपल चीजें रही साथ में। वैसे हर 5 साल में ये चीज आता है, बट इस बार काफी लंबा पीरियड चला है इसमें क्योंकि बजट इश्यूज भी हुए, इलेक्शंस भी थे, सब कुछ मिक्स हो गया। तो नेक्स्ट FY26 के लिए तो हम उम्मीद कर रहे हैं सर कि बेटर जाएगा। ऑन द मार्जिन फ्रंट सर, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, मार्जिन जो हमने इस बार जो एक्सपेंस इनकर किए हैं जिसके कारण आपने कहा कि जो मार्जिन हमारा डेप्लीकेट हुआ है टू अराउंड 11%, तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं तो ये कब रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट करेंगे सो दैट हमारा मार्जिन नॉर्मलाइज हो जाएगा सर? 2 क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा इन दोनों जो नए प्रोजेक्ट पे हमने जो फंड लगाए हैं ना सर। नेक्स्ट कमिंग 2-3 क्वार्टर्स में इनका रेवेन्यू आ जाएगा सर। बट सर हम Q4 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वापस जाके 13-13.5-14% तक आ जाएगा मार्जिन हमारा? सर वो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता उसके लिए, बट ये है कि हम उसके लिए ट्राई तो कर ही रहे हैं कि जो रेवेन्यू है रिकग्नाइज जल्दी हो और डिपार्टमेंट से फंड आएंगे तो ऑब्वियसली रियलाइज होगा पैसा और मार्जिन भी बढ़ेगा। ओके। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, हमारा अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान देखें तो जल जीवन मिशन हमारा फीड कर रहा है टू अवर ग्रोथ प्लान, करेक्ट? जो अभी फिर भी हम देखें तो जल जीवन मिशन 2028 तक एक्सटेंड कर दिया है, फिर भी मैं 5 साल तो विजिबिलिटी लूँ तो सर कौन से सेगमेंट है जहाँ, क्योंकि जल जीवन मिशन ऑफकोर्स 2-3 साल हमें रेवेन्यू देगा, बट उसके बाद सर व्हाट इज अवर ग्रोथ प्लान? अगर हम डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं कोई और सेगमेंट में? सर वाटर सप्लाई अगर मैं बात करूं तो लास्ट 38 ईयर्स से काम कर रहे हैं सर, और ये जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो नेम चेंज होते हैं सर। जल जीवन मिशन अमृत, अभी अमृत 2.0 आ रहा है तो वो नेम चेंज होता है सर, बट पब्लिक यूटिलिटी के प्रोजेक्ट हैं तो हमेशा ही कंटिन्यू रहेंगे सर। प्लस साथ ही साथ हम डाइवर्सिफिकेशन में रेलवेज में भी देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी, जैसे अब ये हमारा जो रेलवेज के प्रोजेक्ट आए 1300 करोड़ में से 854 करोड़ के रेलवेज के प्रोजेक्ट है मेरे पास इस करंट ईयर में। ओके, तो कोई और सेक्टर हम ट्राई कर रहे हैं क्या हम, जिससे हमारा थर्ड सेगमेंट या फोर्थ सेगमेंट हमारा जो पिलर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए? सर अभी वाटर सप्लाई, रेलवेज, रोड पे फोकस है हमारा एज ऑफ नाउ। ओके, ये सर ठीक है That's it from my side. Thank you. The next follow-up question is from the line of Prateek Bhandari from Art Ventures. Please go ahead. सर अपना वर्किंग कैपिटल डेज कितना रहा है Q3 के अंदर? Q3 में वर्किंग कैपिटल डेज करीब 190 डेज का रहा है सर। 90 to 100 डेज? 190 190 दिन का। 190 दिन? यस सर। तो सर ये जब चीजें बेटर दिखने लगेंगी तो ये बैक टू नॉर्मल कहाँ जाके सस्टेन करना चाहिए, क्या रेंज देखते हैं आप? सर रेंज 150 दिन रहती है जनरली वर्किंग कैपिटल की, 120 से लेके 150 तक रहती है।
ये और जैसे ही पेमेंट्स आना स्टार्ट होंगे तो रैशनलाइज हो जाएगा सर ये। तो ये 190 वाला 150 चले जाएगा। यस सर। और सर ये अपना क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट काफी एलिवेटेड रहा है इस क्वार्टर में क्योंकि हमने लोन लिए हैं, तो सर कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या था? सर ये कॉस्ट ऑफ बोरिंग मेरा 9 to 12% रहा है। 9 to 12%? यस सर, मिनिमम 9 रहा है, मैक्सिमम 12 रहा है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Shashin, who is an individual investor. Please go ahead. मेरा क्वेश्चन है ऑन द Q4। ये जो Q3 में हमारा जो मार्जिन ड्रॉप हुआ है क्योंकि हमने कॉस्ट बुक की है, और अभी प्रीवियस आंसर्स में आपने कहा कि इसका रेवेन्यू अगले कुछ 2-3 क्वार्टर्स में रिकॉग्नाइज होने वाला है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो मार्जिन Q4 में भी है वो नॉर्मलाइज तो नहीं रहेंगे, वो रिड्यूस्ड ही रहेंगे। ये जो मार्जिन लॉस अभी हुआ है या रिडक्शन हुआ है वो हम रिकवर नहीं करेंगे इस साल में। सर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर पेमेंट आएंगे तो रिकवरी हो ही जाएगी और नॉर्मलाइज भी होगा, मार्जिन पहले से बेटर होगा। और एक मेरा मेरा एक अकाउंटिंग क्वेश्चन था कि प्रेजेंटेशन में हमने ये लिखा था कि हमारे EBITDA मार्जिन रिडक्शन क्योंकि हमने आपकी आवाज Sorry to interrupt, sir. I would request you to please use your handset. I am on the handset. Is it better now? Yes, sir. Please continue. Please, Okay. can you please repeat your question? Thank you. Sure. So हमने प्रेजेंटेशन में ये लिखा था कि हमारे EBITDA मार्जिन्स रिडक्शन का वन ऑफ द रीजंस था कि हमने कॉस्ट बुक किए थे प्रोजेक्ट्स के लिए जिसका हमने रेवेन्यू अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो मेरा ये एक अकाउंटिंग क्वेश्चन था कि हम ये कॉस्ट डिफर क्यों नहीं कर पाए जब तक हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होता है, क्योंकि डिफॉल्ट कॉस्टिंग रिकॉग्नाइज नहीं होती, WIP में आया ना सर वो कॉस्ट। ओके। हाँ। और लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि जो हमारा रिसीवेबल्स की जो बात हो रही है कि अगर हम Q4 में भी अगर हम जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने की जो हमारी मंशा है और अगर हम जितना रिसीवेबल्स है वो भी अगर हम कलेक्ट कर पा रहे हैं अराउंड 500-600 करोड़ एंड रफली अगर उतना ही रेवेन्यू भी अगर हम रिकॉग्नाइज करते हैं तो मोटा मोटी हमारा रिसीवेबल्स ओवरऑल उतना ही रहेगा। ओवरऑल रिडक्शन शायद नहीं होगा रिसीवेबल्स में, DSO शायद कम हो जाए। है ही है ना सर, पिछले H1 वाले रिजल्ट से थोड़ा अभी मैंने जैसे बताया थोड़ा रिडक्शन अभी भी है और गोइंग फॉरवर्ड आगे भी होना है सर रिसीवेबल में रिडक्शन। ओके। यस सर। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Prashant Pani, who is an individual investor. Please go ahead. Mr. Prashant, I would request you to unmute Hello. your line, please. Yes, sir. Is it audible, sir? Yes. Yes, sir. Yeah. So my only one, most of the questions got answered here. One question. So actually, as we have given the guidance of 10 to 15% growth in top line and bottom line. So until 9 months so far, so our growth is just 2 to 3%. So still it is intact, like we will be growing at the end of this financial year by 10% or 15%? एज ऑफ नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर पेमेंट रेगुलराइज होते हैं तो अचीव करेंगे रेगुलर जो इक्वल लेवल है वो। Okay. And second question. So actually, I have been hearing that your billing and the payment delay from the government things, right? So like other paid companies, I have not been hearing these kind of issues like payment issues. So it's being like they are not projecting that kind of issues there. So just to understand, so whether it is because of that, it depends upon the state government's project, because of that it is having or something. Okay, so sir, basically if you look after the companies that are into like similar nature of our work, which have like major portions into water supply, so everyone is facing these kind of issues. Okay, but that is not reflecting in their balances. So that's okay.
Yeah, that's from my side. So thanks for the future. Thank you. The next follow-up question is from the line of Vidhi from Indus Bank. Please go ahead. So a follow-up question to my previous question is that you are saying that if you receive payments from the government which are stuck up, you would be able to match your FY24 revenues. Yes. अगर पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट नहीं आता है तो आर वी एक्सपेक्टिंग अ डिक्लाइन ओवर FY24 रेवेन्यू इन FY25? नहीं, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं मैम. वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग द सेम. हम ये जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेमेंट्स आएंगे तो हम मैच कर पाएंगे उसको. नहीं, सो ऑन अ कंजर्वेटिव साइड अगर आप बोल रहे हो कि अगर नहीं आता है फॉर एग्जांपल वो पेमेंट जो अभी डिले हो रहा है, तो व्हाट कुड बी द इम्पैक्ट? नहीं आएगा तो हमारी थोड़ी कॉस्ट बढ़ेगी. हमें काम तो कंटिन्यू करना ही है मैम. ओके, तो बेसिकली आप रेवेन्यू रिकग्निशन मतलब बेसिकली आप ऑर्डर एग्जीक्यूशन नहीं रोकेंगे, मे बी आपकी डेटर पोजीशन और बढ़ के दिखेगी. Okay, and sir, what is the expected order execution for Q4 FY25? If you could just give us a ballpark figure. फिगर में कैसे बता सकते हैं? बट मतलब आपने कुछ प्लान करके रखा होगा बिकॉज वी आर अबाउट 650 करोड़ शॉर्ट. लास्ट ईयर के जो ऑर्डर 2700 करोड़ के हैं मेरे, तो अभी मेरे को 24 मंथ से 36 मंथ में करना है उसका एग्जीक्यूट. अभी एज ऑफ नाउ मेरी ऑर्डर बुक 5000 करोड़ की है जो नेक्स्ट कमिंग 2 to 3 years में कंप्लीट करनी है मेरे को. ऑन एन एवरेज यू कैन एनालाइज. So basically, we are 650 crore short to match with FY24 numbers for now. So about 650 crore का revenue achievable आपको लग रहा है अभी? बिल्कुल लग रहा है मैम. ओके सर. एंड सर वो मुझे डेटर एजिंग आप कैसे ईमेल करोगे कि कैसे मिलेगी कॉपी? आया के थ्रू आपको शेयर करवाता हूँ ना. ओके, ठीक है. थैंक यू. Thank you. The next question is from the line of Prateek Bhandari from Art Ventures. Please go ahead. सर, ये जो आपने थर्ड क्वार्टर के एंड तक डेटर्स बताए 800 करोड़ के. हेलो. यस सर. इसमें से जनवरी मंथ जैसे निकल चुका है तो कितना रिकवरी हुआ है जैन मंथ में? रिकवरी हुआ है इसमें. अभी फिगर्स एज ऑफ नाउ नहीं है मेरे पास, बट रिकवरी हुआ है सर. कितना इन परसेंटेज वाइज? सॉरी, कैसे फिगर पूछ रहे हैं या परसेंटेज पूछ रहे हैं? परसेंटेज पूछ रहा हूँ सर मैं. 800 करोड़ में से आपने बताया कि 600 करोड़ ड्यू है, 200 करोड़ अनड्यू है. उसका करीब और 20 से 25% रिकवर हुआ है सर. 20 से 25% मतलब 150 करोड़ रिकवर हो गया है. सर फिगर नहीं बता सकता मैं अभी. ठीक है सर. बाकी एजिंग अगर आपको चाहिए तो आपको भी डिटेल बताऊंगा. जी सर. Mr. Prateek, does that answer your question? Yeah, okay, thank you. Thank you. The next follow-up question is from the line of Rajesh Bhandari from Nakhoda Engineers. Please go ahead. सर मेरा ये एक रिक्वेस्ट था कि जैसे अपना फाइनेंस का प्रॉब्लम जो हो रहा है और नॉर्मली टर्न की कंपनीज में होता है ये प्रॉब्लम बिकॉज डिलेज होते हैं पेमेंट में और उसकी वजह से इंटरेस्ट बर्डन बढ़ता है, कभी कभी काम में भी डिले हो जाता है. तो सर समहाउ किसी तरह से 2-3 क्वार्टर्स में थोड़ा जोर लगाकर अगर बढ़िया रिजल्ट दे दें तब तो आप यू कैन कम आउट विद QIP ऑल्सो. आजकल तो जिसको देखो सर QIP में आ रहा है. आपका जो मेन प्रॉब्लम है फाइनेंस वाला वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी सर. बिल्कुल सही बात है. तो फिर ये पेमेंट आ जाएगा तो ऐसे भी कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो कोई हमको भी. नहीं वो बात तो सही है सर, लेकिन हर बार क्या होता है हैंड टू माउथ हो जाते हैं. सही बात है, बिल्कुल सही. हाँ कि लाओ और खाओ. तो वो जो चीज है कम से कम QIP होने से थोड़ा पैसा तो रहेगा सर. मैं खाली एक एग्जांपल दे दूं सर, वो भी अपने जोधपुर का ही है, मैक्रोटेक डेवलपर लोडा जी. Sorry to interrupt, Mr. Rajesh. I would request you to rejoin the queue for your follow-up question. As there are no further questions from the participants, I would now like to hand the conference over to the management for closing comments. Thank you all for participating in this earnings con call. I hope we have been able to answer your questions satisfactorily. If you have any further questions or would like to know more about the company, please reach out to our IR managers
at Valorum Advisors. Thank you. On behalf of Vishnu Prakash R. Punglia Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your line.